Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well with your preparation. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी न्यूज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. So let's start with the topic first. Today is 28th of September and these are the list of the topic that I'll be discussing. The first is understanding the rationale of the Farm Bill, the recent controversy amid the Farm Bill. Against that we have editorial. Now the second is GEMEX 2020. This is a naval exercise between India and Japan. Now the third topic is herd immunity status in India. Some official clarification coming from the Minister of Union Home Health Minister. So the Health Minister has given some details regarding the herd immunity. And the fourth topic is benefit of carbon tax. This is again an editorial. The last topic is currency holding with the public. So RBI has given some report regarding the holding of the currency with the public. Apart from all this topic, we'll discuss some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday questions. तो जो Saturday के सवाल थे उसके correct option और explanation भी मैं आपको बताऊंगा. So stay tuned till end of this video. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. So the first topic, starting with the first topic, and this is from the Indian Express, the farm freedom to sell. This is an article title which you can find in the newspaper. And this is more into the understanding the rationale of the farm bill. This is very important topic and very important news amid the controversy that is ongoing regarding the farm bill. And it is important for your general studies paper 3. Specifically, we have topic mentioned in the general studies paper 3 regarding the farm welfares and farm bills. And here and there, this point again very important for your prelims examination. So let's understand the topic first. So recently, the passage of the bill in both houses of the parliament, that is the Lok Sabha and the Raj Sabha, they have created a controversy in the country. And huge farmers from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh are protesting against the farm bill. So the government has claimed that this would be a historic step. Government का ये कहना है कि ये जो बिल पास की गई है, this would be in the interest of farmer. उनको एक आज़ादी मिलेगी कि वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सके किसी की जगह all over India, all over the country, right? And there would be no restriction, right? Wherever they want, they can sell. So this is the statement which is coming from the government amid the passage of this bill. अब इसके बाद क्या क्या consequences हैं, क्या क्या चीज़ें समझने की है और कैसे farmers को गुमराह किया जा रहा है. I'll let you understand everything. So where does the truth lies? इस editorial में इस पे फोकस की गई है कि actual में truth क्या है. Amid the controversy, जो बेसिकली जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने फार्मर को शायद मिसगाइड किया हो, तो कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसकी सच्चाई क्या है. सो जो तीन बिल है, द थ्री बिल हैज टू बी सीन इन टोटलिटी. दिस इज व्हाट मिस्टर गुलाटी हैज टू से इन दिस एडिटोरियल. सो द फर्स्ट बिल इज फार्म प्रोड्यूस ट्रेडेड एंड कॉमर्स, दैट इज लाइक प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसको शॉर्ट में FPTCB कहते हैं. Now the second is regarding the empowerment and protection. This is an agreement on the price assurance of the farm bill. This is called FAPAFS, right? So this is the mnemonics. And the third is Essential Commodities Act, dated ECA 2020. तो ये तीन बिल को टोटलिटी में देखने की जरूरत है, ऐसा कहना है अशोक गुलाटी, who is a renowned author and writer of about all the agriculture activities, research expert in the agriculture field. Now, इनके मुताबिक जो एसेंशियली अगर FTPC की बात करें, दिस इज द फर्स्ट बिल. FPTC की बात करें तो इट ब्रेक द मोनोपोलीज पावर ऑफ द APMC मार्केट. जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ हैं उनके जो मोनोपोलिस्टिक्स पावर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये ख़त्म करती है. सो दिस इज़ वन पॉजिटिव थिंग. नाउ द सेकेंड, talking about FAPS. Now this allows the contract farming. Contract farming का मतलब होता है अगर farmer है, he is a farmer and he is the consumer or like those who want to purchase, there is a direct contact which is established between the farmer and the consumer or the buyer. You can say consumer or the buyer, right? So there is no intermediaries involved here. तो contract farming allows होगी. एंड जो ECA है, जो लास्ट बिल है, राइट, दैट इज द थर्ड बिल. इट विल अलाउ टू लिमिट द ट्रेडर्स, जो लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ हैं
उनको वो एक जगह से दूसरी जगह सेल पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोविड-19 को देखते हुए 10 ऐसे कमोडिटीज़ थे जिनको ईसीए से बाहर कर दिया था, राइट। सो उसकी सेल परचेज काफ़ी ईजी हो जाती है, एफसीआई में चीज़ों को मेंटेन नहीं करना होता, ज़्यादा रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस हैज़ टू बी सीन इन टोटलिटी ऑल दिस 3 बिल, राइट। नाउ पोटेंशियल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो अगर इकोनॉमिक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो लेजिस्लेशन है, जो बिल आई है, इट प्रोवाइड द ग्रेटर चॉइस फॉर फ्रीडम टू द फार्मर so that they can sell their produce by their जो storage होगी buy to the storage and thereby creating an agriculture competitive market. This is the first point regarding the rationale. Now the second would be the competition that is expected to build in a more efficient and value chain agriculture, reducing the marketing cost. जो marketing cost है, जो और भी additional costing लगती है farmers को, उनमें मदद मिलेगी. And the third would be enabling the better price discovery. एक नया price discover कर पाएंगे farmer. मेन जो फार्मर का कंसर्न है मैं आपको यहाँ बता दूं, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा एमएसपी को लेकर के कि सरकार एमएसपी एबॉलिश कर देगी, बट गवर्नमेंट हैज क्लियरली स्टेटेड इन लोकसभा एंड इन राज्यसभा दैट एमएसपी इज नॉट गोइंग टू बी एबॉलिश्ड, राइट। ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। नाउ द फोर्थ वुड बी इम्प्रूविंग द प्राइस रियलाइजेशन, जो फार्मर के साथ जो रियल टाइम में जिस तरह से प्राइस रियलाइजेशन है उसकी मदद मिलेगी। इट विल ऑल्सो रिड्यूस द जो प्राइस पेड हो जाती है कंज्यूमर्स को, उसमें भी फार्मर को ही बेनिफिट है। अल्टीमेटली इट विल जो रिड्यूस होगी प्राइस की तो कंज्यूमर को भी कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट में फ़ायदा मिलेगा। एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्टोरेज। अगर बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जहाँ पे स्टोरेज में बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग पंजाब, चंडीगढ़ और बेसिकली हरियाणा के रीजन में है, बट टॉकिंग अबाउट द पैन इंडिया स्टिल वी डू नॉट हैव ट्रिपल पी मॉडल इन द स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टेज हो रही है इसको कम करने में मदद मिलेगी जब एक अच्छी स्टोरेज इंडिया में होगी। नाउ बात करते हैं कुछ कंसर्न्स की। अगर क्या ऐसे कंसर्न है जिसकी वजह से फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उनको किस तरह से मिसगाइड किया गया है। सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, द वेरी स्ट्रेंज पार्ट इज लाइक जो अपोजिशन है इंडिया में, किसी भी चीज़ के प्रोज और कॉन्स को नहीं समझते हुए उनका बस यही काम है कि दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। See, in a democracy, we have the right, but in a favor, we need to understand it. We do not need to misguide the farmer. उनको पता है farmer are not actually well read. उनको सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है, चीज़ों को पता नहीं, so they start misguiding the farmers, right? तो मेरे हिसाब से जो important concern है उसमें कुछ कुछ चीज़ों को मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली concern ये है कि स्टेट जो है वो काफ़ी हद तक अपनी रेवेन्यू को लॉस करेगी, जो मंडी फी है और जो सेस है वो कम हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड इज सेंटर हैज़ प्रॉमिस, जो कंपनसेशन है जो 3 से 5 साल की खास करके जो एपीएमसी रिफॉर्म को लेकर के भी कही गई थी, क्या उनको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। नाउ द थर्ड एप्रीहेंशन इज दैट कि जो एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बेसिकली जो कुछ फार्म प्रोड्यूस जो भी लिस्टेड आर्टिकल होते हैं सीएससी पे डिसाइड करती है, उसके अकॉर्डिंगली एमएसपी दिया जाता है। तो फार्मर्स का कहना है कि एमएसपी एबॉलिश कर दी जाएगी। जो हमारे अपोजिशन पार्टी है, खास करके जो लीडिंग अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने फार्मर्स को कहा कि आपकी एमएसपी एबॉलिश हो जाएगी, बट प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज सेड कि नो एमएसपी इज गोइंग टू एबॉलिश। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लोकसभा में इन्होंने ये बयान दिया था कि कोई भी एमएसपी एबॉलिश नहीं की जा रही है, राइट। सो इफ समथिंग विच इज स्टेटेड ऑन रिकॉर्ड इन द पार्लियामेंट, दिस कैन नॉट हैपन, राइट। उसमें रिवर्सल आप नहीं कर सकते, ऑन रिकॉर्ड चलती हैं सारी चीज़ें। नाउ दे कैन टेक ऑन द रोल ऑफ एग्रीगेशन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। क्या प्राइवेट सेक्टर आकर के जो फार्मर्स हैं उनको उनका नुकसान होगा, इस तरह से चीज़ें प्रमोट की जा रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न दिखाए गए हैं फार्मर की तरफ से। नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, क्या इसमें एक रास्ता निकाला जाना चाहिए, व्हाट वुड बी द मिडल पाथ। सो द फर्स्ट इज दैट गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्ट्रेंथन द कंपटीशन। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए फंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं, तो आई पर्सनली फील कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे कुछ चीज़ें सुधरेगी। Now the second is empowering the state farmer commission। जो हमारी स्टेट फार्मर कमीशन है, जो रिकमेंड करती है प्राइजेस को लेकर के, जो नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स है उनके अकॉर्डिंगली चीज़ों को रिस्पॉन्स करती है। सो यहाँ पे चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड द सेंटर शुड ऑल्सो रीच आउट टू दोज अपोजिंग द बिल।
इंक्लूडिंग फार्मर्स, एंड दे नीड टू, क्या उनको रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो वो गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ी गलती की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने फार्मर के साथ कंसल्टेशन नहीं की। कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द फार्मर, दे हैव नॉट कंसल्टेटेड, और उस कंसल्टेशन नहीं होने की वजह से क्या हुआ, अपोजिशन ने फार्मर को मिसगाइड किया, राइट। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कंक्लूड, एंड इन नटशेल इफ आई विल से कि ये बिल जो है, दिस इज अगेन इन द फेवर ऑफ द फार्मर। होलिस्टिकली वी हैव टू कंपेयर थिंग, एंड जो तीनों बिल है उसको एक यूनिफॉर्म करके देखना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज गोइंग टू रिफॉर्म द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कमिंग ईयर्स, राइट। Now coming to the other topic from the Hindu, this is like GIMEX 2020, एक नेवल एक्सरसाइज है, इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और एक्सरसाइज पे यूपीएससी अक्सर आपसे सवाल पूछते रहती है प्रीलिम्स में। तो फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें, 4th एडिशन चल रही है बाइनियल इंडिया जापान नेवल एक्सरसाइज, साल में 2 बार की जाती है, एंड दिस इज अंडर वे इन द नॉर्थ अरेबियन सी। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जो हमें अपने रिसेंटली पिछले महीने किया था जापान के साथ। उसके बाद ये पहली एक्सरसाइज है। जो जिमेक्स है, दैट विल शो द हाई डिग्री ऑफ इंट्रो ऑपरेटिविटी and the near operation skill that would conduct into the magnitude of the advanced exercises। उसके अलावे जितने भी स्पेक्ट्रम है मैरीटाइम ऑपरेशंस को लेकर के, उसमें भी चीज़ों को एडवांस करने की बात की गई है। और इंडिया और जो जापान के साथ जो नेवल एक्सरसाइज है, दैट हैज़ बिन लॉन्ग कंटिन्यूड, ऐसा नहीं अभी स्टार्ट हुआ, काफ़ी टाइम से ये चलता आ रहा है। मल्टीफेसेड टैक्टिकल एक्सरसाइज की अगर बात करें तो वेपन फायरिंग्स होंगी इसमें, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स सर्फेसेस हैं, एंटी सबमरीन एयर वॉरफेयर ड्रिल्स होगी, और एक कंसोलिडेटेड कोऑर्डिनेशन डेवलप की जाएगी बिटवीन द टू नेवीज मीन्स इंडिया एंड जापान, राइट। नाउ इंडिया जापान मैरीटाइम कोऑपरेशन की अगर बात करें तो जो मैरीटाइम कोऑपरेशन रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, सो दिस हैज़ इंक्रीज्ड बिटवीन द टू साइड, चाहे वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर के हो या फिर मैरीटाइम डोमेन को लेकर के हो। सो बोथ कंट्रीज़ हैव एग्रीड की जो हमारी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, जिसको MDA भी कहते हैं इंडियन ओशन रीजन में, उसको दे वुड मोर स्ट्रेंथन इट सो दैट बोथ कंट्री गेट बेनिफिटेड। And the two countries have made steady progress in the MDA। MDA में काफ़ी हद तक जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, उसमें बहुत हद तक जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करनी है, एक डीपर कोऑपरेशन बनाई गई है बिटवीन द टू नेवीज। एंड द एडवांस लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सरसाइज इन अगेंस्ट ड्यूरिंग द जिमेक्स, जिसमें कि एक कंटिन्यूड अपस्विंग होगी बिटवीन इंडो एंड जापान डिफेंस रिलेशन। और गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कर दिया है कि दे विल क्लोजली वर्क विद इट, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, एक्सचेंज ऑफ मैरीटाइम डेटाज हो, एंड देयर इज अ ओपन ग्लोबल कॉमन्स दैट इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल रेगुलेशन। क्योंकि आप बेसिकली बात करें अरेबियन सी में, तो इंडिया हैज़ अ डोमिनेंस ओवर देयर, बट जापान के साथ अगर कॉपरेशन हो तो उसको और अच्छे करने की ज़रूरत है, एक इंक्लूसिव ग्लोबल कॉमन्स की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम द जापान इंडिया जापान मैरीटाइम कॉपरेशन। Now coming to the third topic from the Hindu, that is herd immunity status in India. This is an official confirmation coming from the Union Health Minister, and this is again important for your General Studies paper 3, and in per se prelim there could be here and there some question which would be relevant. तो एक recent interaction हुई है सोशल मीडिया में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की, जिसको संवाद के नाम से भी जानते हैं। सो ही हैज़ क्वेश्चन कि जो हमारी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो ICMR के रिसर्च है, अपकमिंग जो है सेकेंड सर्वे, उसको लेकर के कुछ क्वेश्चन बताई गई है, और उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि अभी भी इंडिया हर्ड इम्यूनिटी से काफ़ी दूर है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब वो होता है कि जब किसी भी कंट्री की more than 60% of the population, so you can say like 65% to 70% of the population are infected, और antibodies अगर उनकी बन रही है, so that condition is known as that people are herd immune, right? उनकी herd immunity generate हो रही है। तो इस तरह से चीज़ों को सीधा नकारा गया है। Officially this has come from the Union Health Minister, and he has said that the first COVID survey does not create a sense of complacency among the people with regards to the virus. Now जो फर्स्ट सेरो सर्वे थी दैट वाज कंडक्टेड इन दिल्ली, कुछ और प्लेस में भी की गई थी मई के टाइम में, और ये बताया गया था कि जो नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है दैट इन्फेक्ट्स ओनली 0.73%, बट ही हैज़ क्लैरिफाइड कि इससे डेटा जो है ये कई ज़्यादा है, और जहाँ तक हर्ड इम्यूनिटी की बात की जाए वो अभी इंडिया में नहीं है।
नाउ क्वेश्चंस बताई गई हैं कुछ मेडिसिन और थेरेपी को लेकर के. सो द मिनिस्टर हैज़ क्लियरली स्टेटेड कि जो इन्वेस्टिगेशंस थेरेपीज हैं उसको या फिर जो रेमडेसिविर जो मेडिसिन है दैट हैज़ टू बी वेरी लिमिटेड यूज़. जो प्लाज्मा थेरेपीज़ है अर्लियर इट वॉज बीइंग एडवोकेटेड कि जो प्लाज्मा थेरेपीज़ है उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं. बट एग्रीकल्चर बेसिकली बात करें जो ICMR जो है हमारी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है उनके मुताबिक और हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक दीज आर नॉट गिविंग द रिजल्ट एज इट वॉज नीडेड. राइट, जो ज़रूरत की गई थी, जो टारगेट सेट की गई थी उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं इस पर. Now, the private hospital has been advised to again route with the use of investigational therapies. जो थेरेपीज चलती आ रही है, जो पुरानी गाइडलाइन थी उसी को फॉलो करने के लिए कहा गया है. एंड द मिनिस्ट्री पैनल हैज सेड कि एक्सपर्ट आर स्टडिंग द इमर्जिंग एविडेंस ऑफ द कोविड-19 नॉट ओनली ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ द पेशेंट्स लंग्स बट ऑल्सो इन द अदर ऑर्गन सिस्टम. सिर्फ लंग्स पे इसके इफेक्ट को नहीं देखा जा रहा, सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं देखी जा रही हैं, बट और क्या किसी ऑर्गन को ये इफेक्ट कर रही है इसके बारे में भी स्टडी चल रही है. नाउ इंक्रीजिंग द टेस्टिंग की बात की गई है. जिस तरह से अगर बात करें बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहाँ पे टेस्टिंग के प्राइजेस को कम करने की बातें कही गई है. एंड अगेन द मिनिस्ट्री हैज सेड, द मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज सेड कि जितने भी प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं दे वुड बी इंगेजिंग इन दिस. अब पहले अगर कोविड के टेस्ट आप कराएंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, बट एज ऑफ नाउ अब कोई डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है. आप किसी भी प्राइवेट लेबोरेटरीज में जाकर के टेस्ट करवा सकते हैं. और यहाँ पे एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट जोड़ना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है, सो दिस स्कीम वाज एम्ड टू करेक्टिंग द रीजनल इम्बैलेंसेस इन द हेल्थ केयर. सो गवर्नमेंट अगेन नीड टू इम्प्रूव दिस बिकॉज दिस इज समथिंग विच वुड वर्क इन अ पिरामिड मैनर. एक होलिस्टिक तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम करनी है तो वी हैव टू इम्प्रूव द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. Now the other topic is coming from the benefit of the carbon tax. This is again an editorial that is coming from the Hindu. Carbon tax is again a very important topic. आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है. मेंस में इस पे एक एनालिटिकल सवाल भी पूछे जा सकते हैं. तो टॉप 3 कार्बन एमिटर कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, सो दैट आर चाइना, US एंड इंडिया. और वर्ल्ड लार्जेस्ट अगर कार्बन एमिटर की बात की जाए सो दैट इज़ चाइना, अनडाउटली दैट इज़ चाइना. बट चाइना हैज़ कम अप दैट दे वुड बी रिड्यूसिंग इट्स एमिटर बाय 2060. तो वो ऑफसेट करेंगे कार्बन एमिट को, ऐसे चाइना की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर किया बाय 2060. तो इफ़ वन कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द कार्बन इज टेकिंग सम एक्शन, तो अब बात आती है कि जो US और इंडिया है ये किस तरह से एक्शंस लेंगे, क्योंकि US की जो रैंकिंग है वो सेकंड है और इंडिया की जो रैंकिंग है वो थर्ड है इन टर्म्स ऑफ द कार्बन एमिशन. नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक प्लान है जहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडोर्स किया यूरोपियन यूनियन के प्लान को, जहाँ पे बताया गया कि जो कार्बन सेस है उसको इम्पोज किया जाना चाहिए इम्पोर्ट्स पे. राइट, एंड इंडिया कैन बी द फर्स्ट मूवर इन डेवलपिंग द वर्ल्ड इन टैक्सेसिंग, जहाँ पे स्विचिंग टू द कार्बन इंटेंसिव फ्यूल, जहाँ पे कोल है इज़ द मेन सोर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया. तो कोल की बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ है इंडिया में. क्या इसके कुछ अल्टरनेटिव्स इंडिया निकालेगी या फिर टैक्स एज अ पेनल्टी देनी होगी, दैट हैज़ टू बी सीन इन अगेन अनदर कोर्स ऑफ टाइम. अब कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, सो अगर मैं एक एक कंट्रीज़ की बात करूँ, सो टेकिंग आउट द कैपिटल ऑफ इंडिया लाइक दिल्ली, सो रिकॉर्ड हीट वेव हैज़ बीन सीन बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. Talking about China, we have lots of flood in China. Catastrophic forest fires have been seen in the California. So ये 3 different countries के जो consequences हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. And India is the 5th largest जो ranking की अगर बात करें तो global climate risk index में इंडिया की जो rank है वो 5th है. This is 5th ranking. This is important. And according to the UN National Report 1998 से 2017 के बीच की अगर बात करें तो जो डिजास्टर हिट हुई है उसके वजह से 2.9 ट्रिलियन का लॉस हुआ है पूरे इकोनॉमी में. जो भी इमर्जिंग इकोनॉमी वर्ल्ड है या फिर जिस तरह से यहाँ पे जो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट है इन कंट्रीज़ में, दैट हैज़ रिजल्टेड इन द 77% ऑफ द क्लाइमेट चेंज. 3 कंट्रीज़ की खास फोकस है यहाँ पे. सो द US हैज़ फेस्ड द हाइएस्ट लॉस फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया. राइट, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ डिक्रीज इन द एयर पॉल्यूशन की बात करें तो जिस तरह से लॉकडाउन के बाद चीज़ें देखी गई हैं, सो बिकॉज मेनी कंट्रीज हैज़ अ लॉकडाउन फॉर 2 मंथ, इंडिया में स्पेसिफिकली 3 मंथ्स तक कंटिन्यू रही थी. तो ये बताया गया है कि कुछ हद तक जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है, बट
द रिडम्पशन इज दैट कि जो पॉल्यूशन एक्टिविटीज़ है, जो एमिशंस हैं, दैट इज शार्पली राइजिंग इन इंडिया. सो जो चीज़ें हुई हैं, इट वुड बी लाइक आने वाले 2 महीने में ही हो सकता है ये चीज़ें फिर से वापस उसी स्टेज पे चली जाएं. ना स्ट्रॉन्गर एक्शन इज नीडेड. तो सबसे पहली स्ट्रॉन्ग एक्शन में ज़रूरी है कि देयर शुड बी इम्पोजिशन ऑफ कार्बन टैरिफ लगाना चाहिए, सो दैट जितने भी कार्बन ट्रेड हो रहे हैं, कार्बन इंटेंसिव ट्रेड है, उस पर टैक्स लगाया जाए. द सेकेंड इज मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, जहाँ पे कार्बन डोमेस्टिकली इंड्यूस की जाए. देयर शुड बी एन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी दैट ऑफर द वे फॉरवर्ड. एंड इंडिया इज कमिटेड की जो 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है from the non-fuels by 2030. This is the commitment that is coming from India, and lowering the ratio of emission by GDP 1/3 to the जो 2005 में लेवल थी उसकी 1/3 तक रिडक्शन की जाएगी. And one way to price of the carbon is like through the trading emission, जो मैंने आपको बताया, through the emission trading, और सेटिंग अप ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवेलेबल जो एफ्लुएंट इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे टैक्स लगाया जाए, और लो कार्बन एमिशन को लेकर के जो एक्स्ट्रा स्पीसीज हैं उनको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. एंड द पायलट प्रोजेक्ट दैट इज़ कार्बन ट्रेडिंग, जो चाइना में ऑलरेडी चल रही है, ये काफ़ी सक्सेस रही है. सो दिस अगेन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एंड USA. Now coming to the other topic, this is the last topic, that is currency holding with the public. यहाँ पे RBI की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3. तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा दैट इज बीन रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके मुताबिक जो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है, जो करेंसी है, दैट हैज़ इंक्रीज एंड दिस इज लाइक 70,891 करोड़ रुपीज़, एंड दिस हैज़ सीन द न्यू हाई ऑफ 26 लाख करोड़ रुपीज़. राइट, इतनी इंक्रीज हुई है, बट जो टोटलिटी है दिस इज 26 लाख करोड़. तो जो करेंसी है, द करेंसी इन द पब्लिक हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3.07 लाख करोड़ रुपीज़ बिटवीन February to June 2020. Because of the lockdown, people are not investing their amount. They are more precautionary. They are more precaution in spending, and they are more inclined in keeping and saving their fund. Now, what is the reason for the cash holding? क्या कारण है? जो मैंने आपको बताया, COVID-19 is the only reason that the ongoing COVID pandemic through the pace of increasing has declined for the couple of months. सारे जगह पे, चाहे वो MSME के सेक्टर्स हो, स्पेंडिंग्स हो, हाउस होल्ड स्पेंडिंग्स हो, सारे जगह पे पूरी तरह से गिरावट देखने को मिली है. और फर्स्ट क्वार्टर में इट वॉज 23.7%, जो माइनस में GDP की फिगर्स आई थी. ना पोस्ट डिमोनेटाइजेशन की अगर बात करें, डीमोनेटाइजेशन जो हुई है, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो इफेक्ट थी उसके बारे में आपको बता दूं. तो 2016 में डीमोनेटाइजेशन की गई थी, जहां पे गवर्नमेंट ने कैशलेस इकोनॉमी की बात की थी. बट प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, सो द कैश विद द पब्लिक हैज़ राइजन बाय 45%. So despite the fact there is an increase in 45% which were before the demonetization, तो चीज़ें बढ़ी हैं. While the currency in the public has stood to 17.97 lakh crore rupees, you don't need to remember this data, but मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ी. अगर आप नवंबर 2016 की बात करोगे, तो वहाँ पे आफ्टर डिमोनेटाइजेशन थी, उसके बाद जो डिक्लाइन हुई थी वो 7.8 लाख करोड़ रुपीज़ की हुई थी इन जनवरी 2017. So this is to help you understand. This has nothing, just you have to remember it. ये ज़रूरी नहीं है आप इसको याद रखें. तो करेंसी सर्कुलेशन की बात करें, तो करेंसी इन सर्कुलेशन होती क्या है? एक कैश, इसको रेफर करते हैं कि कैश और करेंसी विद इन द कंट्री दैट इज फिजिकली यूज्ड टू कंडक्ट द ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंज्यूमर एंड द बिजनेसेस. राइट, जो मनी सर्कुलेशन में है, लिक्विडिटी फॉर्म में जो है, उसको करेंसी सर्कुलेशन कहते हैं. एज पर द RBI डेफिनेशन, currency with public is arrived after deducting the cash with the bank from the total currency in circulation. So this is called the currency circulation. Now measures भी कुछ लिए गए हैं RBI की तरफ से, जिस तरह से COVID-19 के पहले भी RBI काफ़ी हद तक मेजर्स ली हैं. तो ऑन वन हैंड RBI ने पम्प्ड किया था अराउंड 10 लाख करोड़ रुपीज़ एज लिक्विडिटी फिनेंशियल सिस्टम में, कि इकोनॉमी को एक तरह से बेल आउट पैकेज के तौर पे ये पैसे इन्फ्यूज़ किए गए थे. बट दिस हैज़ पुश द रिटेल इन्फ्लेशन. हुआ क्या, इसके वजह से रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ी है. तो RBI को अब एक्शन के तौर पे, जो पहले रिटेल इन्फ्लेशन की टारगेट 4% रखी गई थी, वो बढ़ के 6% हो गई. तो उसी को ध्यान में रखते हुए RBI हैज़ अनचेंज द प्रीवियस पॉलिसी रिव्यू. सो दे आर कंटिन्यूइंग विद द सेम रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. Right, so these are some of the important measures that has been taken by the Reserve Bank of India. Now बढ़ते हैं अपने सैटरडे के आंसर्स की तरफ. जो सैटरडे के क्वेश्चंस थे उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा.
So for the first question, the correct option here is A, that the statement 1 is correct, that the intercreditor agreement is a part of सशक्त plan approved by the government. और जो intercreditor agreement है that has aimed to push the speedy resolution of the non-performing assets. And statement 2 is incorrect, that the intercreditor agreement aims at improving the resolution of the loan accounts within the rupees 50 crore and above under the control of the group of the lenders. So you can read more on the PIB और आप गूगल करके भी इसको पढ़ सकते हैं. Now coming to the second question, from here we have the correct option A, that option 1 is correct, that the term of the office of the prime minister is not fixed. He hold office during the pleasure of the president, right? And the statement 2 is incorrect, that the salary allowances of the prime minister are determined by the parliament from time to time, right? It is not, this is something which is the incorrect statement. So you can read more about this on the Indian Polity by M. Lakshmikant, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस के बारे में इंपॉर्टेंट एक चैप्टर ही है जिसके बारे में डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हैं. Now coming to the today's question, आज के जो MCQs के सवाल है. So the first question is coming from the modern history. Consider the following statement, that the Brahma Samaj pioneered the cause of widow remarriage and Pandit Ishwar Chand Vidyasagar proactively participated in it, right? So you have to choose the correct options, A, B, C or D. Whatever you feel is the correct answer, you can let us know in the comment section down below. Now the second question coming from geography, with reference to petty soil, consider the following statement. The soil are infertile and do not support any vegetative growth, and they are found in the area of heavy rainfall and high humidity. So just let me know which among the following is the correct answer. How many of you know the correct options, like whether it is A, B, C or D? And if you have read any other information regarding the petty soil, that also you can share us with us in the comment section down below, right? And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.